Namaskar. Welcome again to an aspiration. Didi Pranam. Yes, today it's a very special day for aspiration. Today we have Vidushi Shashwati Shenji. Welcome to an aspiration. And yes, she is with us from the very first day. Like when I thought about this project and I spoke to her and she guided me in terms of like setting up the question itineraries, the title, the name, like the title, aspiration, and also how we present like the episodes, like in terms of the seniority, the gurus and all. So Didit, I would not say thank you to you because you always had been like a guide, a pathfinder for all the Kathak dancers like us. And yes, so Didi, Thank you, Sandeep. Thank you for giving me so much of appreciation and love and respect because um, I have always admired your thought, your work. Whenever you have discussed with me, I have felt that there is a very strong motive uh, and an focus on a certain subject. It is not just casual without a meaning. That is why I really enjoy discussing with you, whether it's for your book, whether yes, it's for your yes, research work, whether it's for anything, whatever little knowledge I have. And that is how it should be. We yes, should be able to share knowledge, just like the gurus share their knowledge with the students. You are like my younger brother, so yes, whatever little knowledge I have, I always like to yes, share it. yes. I So must this, say, really speaking, Sandeep, when it started, when you discussed about it, I was extremely happy. Today again, I was talking to Maharaj Ji because I was, of course, whatever I do, I always seek yes, his permission and yes, his guidance, blessings. So I told him before coming here, महाराज जी आज संदीप भाई का के साथ मैं बोलने वाली हूँ, बहुतों का हो गया, अब थोड़ा मैं बोलूँगी. और ये जब शुरू हुआ था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी. And because it is such a subject which is so strongly felt by the dancers, but many a time the younger ones are unable to express freely. yes. But it is because of your beautiful harmony with the students, the male and the female students, that you are able, they are able to share with you, and you are able to bring out their problems through such medias, through speaking Yeah. to the audience. And So that's this why, is, yes. he also appreciated it. He said, वो लड़का बहुत सोच के काम करता है, मेरा आशीर्वाद रहता है उसको. Like with the blessings of Maharaj Ji and my guru, you always know, like I am always, I want to be a student like you, like Yes. my guru Srimati Srilekha Mukherjee. And uh, like, yes, within this like last 2 3 months, I almost covered the 22 individual interviews and 40, 40 with through the group discussion. So altogether, it is like 62 dancers I met and I talked with them, and then they shared their like views, their knowledge, and still I am taking my pardon if I meet someone, like if I couldn't reach to each and everyone. I am begging pardon for that, because I know there are so many dancers. So, but as much as I can, I tried my level best, and I think, Sandeep, you should, I'm sure you're thinking about it, you should compile all this in a sort of an yes, book kind manuscript, of manuscript. Yes, so yes, that people can read this yes. even later, Yes, yes. the I have Saturday. started. I have started doing that as well. And This is not a one-time thought. It is a thought which should continue and should be pursued again and again. yes, एक बारी इसका बात खत्म नहीं होता है. बिल्कुल. Everyone think about it एंड टाइम always. के साथ साथ ये चेंज भी होएगा है ना क्योंकि Absolutely. आज जो मतलब ऐसे बातचीत करते हुए जो जो मतलब मुझे याद हुआ और सबसे जानने के लिए मिला कि सबका एक ही जैसा मतलब कहना है कि वन शुड लाइक लर्न प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस
with dedication, with patience. So these are the basic criteria that I. And what you said, Sandeep, right in the beginning is very important because of the thing nowadays. I mean, this yug. Because when if we talk about the older generation, like 50, 60, 70 years ago, people who used to learn, they used to almost live with the guru for ages, for years together, until they can really stand by themselves on their own, with their work, with their profession, with their team, whatever. But until then, they were like under the blessings, and in everything, the guru used to give them food and Everything, they everything. They didn't everything. think about But their that life. there. Nowadays, the time has changed. Yes, So from day one, everyone has to think on the side with the learning, how the learning can support them in their life, yes, in whatever way. yes. Whether it is now will be your questions, I know, हाँ, but the basic thing is before पहले तो किसी को स्टूडेंट शिष्य को सोचना नहीं पड़ता था, ना, ना. वो कर रहा है, गुरु खिला रहा है, वो रियाज कर रहा है, जब समय होगा गुरु उसको आगे बढ़ाएगा. There was not that struggle. Yes, अभी तो डे वन से वो सोचता है मैं सीखने जा रहा हूँ, इतना पैसा दे रहा हूँ, तो वो भी कहाँ से जुगाड़ करूँ, कितने दिन तक पेरेंट्स से लूँ, और गुरु को फीस कैसे दूँ, और फिर इसके आगे भी मेरा कैसे मैं इस काम को सीख के बर्बाद करने का तो कोई मतलब नहीं है. नो वन वांट्स टू वेस्ट टाइम. सीख रहे हैं तो कोई उद्देश्य है, तो आगे बढ़ने के लिए. तो वो सब चीजें जो तुमने सबसे भी पूछा होगा और मुझसे भी हाँ, डिस्कस किया, हाँ, वही बहुत जरूरी. वही क्योंकि अब जैसे कि और मैं सोचा हूँ दीदी, आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से किसी के साथ बोला भी होगे कि लोग ना, हम सब डॉक्टर या इंजीनियरिंग या जो दूसरे प्रोफेशन के लिए हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग को वहाँ एक दिखता है कि चलो ये हमें मिलेगा, पर हम कभी डांस के लिए या म्यूजिक के लिए हम तो सोचते जरूर है, क्योंकि हम अपना रियाज के लिए टाइम देते हैं, या तो एक दिन दो दिन इंस्टीट्यूशन या गुरु के पास सीखने जाते हैं, उसके लिए फीस देते हैं. पर अगर हम टोटली अगर कैलकुलेट करें ना, तो पढ़ाई के लिए हम बचपन से लेके पूरा डॉक्टर या इंजीनियरिंग डिग्री तक जितना टाइम और मनी दोनों ही हम स्पेंड करते हैं, कला के लिए वो नहीं करते हैं. मतलब क्योंकि उनको लगता है कि वो फाइनली जाके उसका रिजल्ट और उसका गोल दिख रहा है. हाँ, हमारे यहाँ स्ट्रगल तो है, पर उसका अचीविंग पॉइंट बहुत बहुत मुश्किल है, और ये तो मुश्किल होना ही है, हाँ, क्योंकि ये चोजन आर्ट है. हाँ, ये ईश्वर का बात है. ये बिल्कुल सबके reaching लिए the नहीं है, Almighty. सबके कौन लिए पहुंच पाया है सब. ईश्वर के पास? कितने लोग सचमुच में, ये जितने संत मुनि लोग, ये जितने साधक लोग हैं, चाहे वो मीरा बोलिए, सूर बोलिए, तुलसी बोलिए, सब लोग अपनी साधना से ईश्वर के पास पहुंचे, पर हर कोई तो उस तरह से लाइमलाइट में नहीं आ पाया, उस बिल्कुल. तरह से नहीं कर, न जाने कितने हजार. फिर भी I will start with saying, before you even ask anything, I will speak to the students that it is a vidya which enriches you from inside. यस, अगर आपको उस बात की खुशी नहीं है, तो सब उस कुछ काम नहीं को होगा. बिल्कुल, मत कर, उस बिल्कुल. काम को मत. आप जब स्कूल में डे वन में गए थे, आपके पेरेंट्स ने और आपके माता पिता और आपने भी सोचा था कि विद्या जरूरी है, नॉलेज जरूरी है. क्या बनेंगे क्या नहीं बन पाएंगे ये तो बात की समय बात, बताएगा, हाँ, ये डेफिनेटली. बात की बात है. पर मूर्ख नहीं रहना है, नॉलेज चाहिए. जिस तरह से उसके लिए आपने सोचा, इस काम में भी अगर आप उसी हिसाब सोच से के, आए. अगर आप आनंद आ रहा है, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो वही है हाँ, कि आपका मन पवित्र हो रहा है, आपकी सोच अच्छी हो रही है, आप हम्बल हो रहे हैं, मॉडेस्ट हो रहे हैं, दुनिया के साथ आप एक अच्छे इंसान के रूप में, आपको ये सब चीजें कला सिखाती है. और ये मैं जोर दे के बोलती हूँ कि किसी और विधा में, किसी और प्रोफेशन में ये तालीम और ये उपलब्धि नहीं है जो what we get from our art. yes, How it nurtures to make a good human being, yes. a good person to With move about in society. with Indian जो culture अगर and अच्छा rituals,
with Indian culture and rituals. जो अपने काम में डिविनिटी को देखता है, ईश्वर को पाता है और उसको एक अच्छे स्वस्थ रूप से जो मानता है, नॉट वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कमर्शियल एंड लेता है उसको मिल जाता होगा, उसको मुझसे और तुमसे ज्यादा मिल जाता होगा, पर मन की शांति जो हमें मिलती है वो नहीं, बिल्कुल वो उसे नहीं मिलता है। तो कुछ लोग कभी कभी, खैर अब तुम पूछो तो मैं कुछ और बातें बोलूंगी जो दुख भी देता है कभी। नहीं। और दीदी, मैं जैसे कि मेरा जो टॉपिक था, ये हम सबको पता है कि इट वाज लाइक द एस्टैब्लिशमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ इनिशियली मेल डांसर इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। तो मतलब मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में मैं शुरू से ही मतलब आई वाज नॉट अबाउट दैट, लाइक it was like from as because I am a male, so I can see my mirror, like my image to the mirror. So I started, but definitely we are going to continue it through like the female aspects as well. But that will be later on. But to become a dancer, what should be the basic criteria for someone? First of all, as I said, the passion and love and dedication and wanting, that desire to become a dancer, to learn the art, at least to enjoy the art and the depth and the beauty and I always say divinity, ऐश्वर्य रूप आर्ट का, ये पहले जरूर दिल में होना चाहिए कि मैं उस कला को सीखना चाहती हूँ, क्योंकि you know when the people from abroad, people when we go abroad and teach them or even perform, they come to us to say that when you look through your dance, we feel you're looking at Beyond. some beyond. Yes. Beyond. I also got this. The material world, you're looking at. So this is what impresses us. This is what attracts us. We have to learn. We want to learn how you can look beyond anything, any obstacles, anything what is in front. Yes. तो कैसे होता है? क्योंकि हमको विश्वास अपने काम में है, तो सबसे पहले तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि, और आपको वो चाहत, आपको वो पैशन, आपको यो डिजायर कि मैं इस काम को मन से कर रहा हूँ या कर रही हूँ. दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. फिर जैसे ही वो चीज आपका टारगेट है कि मुझे सीखना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये सेकेंड स्टेप में आपको प्रॉमिस हो जाना चाहिए थोड़े दिन सीखने के बाद, नहीं मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, व्हाटएवर बी आई विल कंटिन्यू विद दिस. चाहे आपको पता है गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्य करते हैं, मेरे गुरु ने, मैं 25-26 साल सीखने के बाद मेरे गुरु ने मुझे गंडा बांधा था और सडनली उन्होंने कहा था कि शाश्वती अगले गुरु पूर्णिमा में तुम्हारा गंडा बांध दूंगा. तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने आई स्टार्टेड क्राइंग टीयर्स ऑफ जॉय. आई सेड महाराज जी मैं तो आज भी आपकी शिष्या हूँ, गंडा बांधने में से मुझे कोई जरूरी नहीं है, मैं उतनी ही डिवोटेड रहूँ. तो बोले नहीं, गंडा बांधने की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, दायित्व आपके कंधे पे आएगा. और जिस दिन गंडा बांधा था उन्होंने समझाया था, गुड़ चना खिलाया था हमको, वो चना द हॉर्स ग्राम which was very tight on the teeth. He said it is symbol of two things. One, that it will be as your work, your riyaz, your journey will be as hard as this chana. But if you can chew it, and then that little gur, the jaggery which you are eating, will give you that tripti, that joy, that khushi, and that sweetness in your work. But without that hard work, the labor of chewing a gram, if you want to do things shortcut, it will not stay for long. It will be short-lived. वो थोड़े दिन में आ भी जाएगा, थोड़े दिन में चला भी जाएगा. आपका पहचान बनाने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा. You have to give to get something. ये तो हर काम में ही है, हमारे काम में बहुत ज्यादा है, और जितना हम देते हैं उतना हमें आनंद आता है. Whether it is in
उससे मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा और इन स्पीकिंग और इन डांसिंग जितना हम करते हैं खुद को आनंद आता है, वो आनंद ही तो सबसे बड़ा पावना है, सबसे बड़ा मेरिट है। वो कोई अवार्ड नहीं दे सकते बाबू, वो कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता है। तो इसीलिए हर स्टूडेंट को पहले इरादा करना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको उसमें डूबने की इच्छा हो रही है कि नहीं। कोशिश कर लो 1-2 साल, अगर मजा नहीं आ रहा है जबरदस्ती मत उसमें रहो, आप जाओ, क्योंकि मजा आएगा तब आपको रास्ता भी दिखेगा, तब आपको किस तरह से आपको निकलना है, वो हर्डल्स को कैसे पार करना है आपके सामने, वही जो तुम पूछोगे। और हमारा उद्देश्य भी है कि कैसे आप फाइनेंशियली अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। एंड वी आर फ्रॉम डे वन वी वर टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स, especially if you remember Sandeep, those students who do not have a backing, who do not have promoters for them, who do not have a big bank balance or parents who can sustain them for whole life, who do not have such huge big names behind them to give them the platform, or that who do not have all the affluency of the society or connectivity or PR क्वालिटीज, जिसके मामा काका इधर उधर सब जगह में बसे हुए नहीं है, और कोई हीरो मार का चेहरा भी नहीं है, जो हम लोग कोई भी नहीं है, ना आप हो, ना मैं हूं, ना कोई है। तो और बिल्कुल मीडियोकर और बिलो मीडियोकर फैमिली के लोग सबसे ज्यादा हमारे फील्ड में शुरू से आते रहे हैं, और आज भी वो आके रुकते भी जा रहे हैं ईश्वर की दया से। और ये कमाल की बात है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोग, मैं यही, क्योंकि तुम्हारा वो पॉइंट आ गया और इसीलिए मैं कुछ लोगों की कोट, मैं कभी किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती, पर इतना गलत सलत र्यूमर्स और बातें फैलती हैं। लोग कहते हैं अरे किसने कहा था आपको, आप फ्रीलांस बोल के आप कहीं नौकरी कर लेते कहीं। अरे आपको जरूरत, आपके लिए सब कुछ बना हुआ था, आपको पैसों का उतना प्रॉब्लम नहीं था, आपके पीआर कॉन्टैक्ट बहुत है, हमें पता है, तो यू कैन से दीज वर्ड्स। बट जिसको चाहत है एक काम करने की और उसके पास नहीं है, तो वो तो डिटरमिन्ड होके भूखा भी रहेगा तो भी करेगा, कष्ट में आएगा तो, पर उसके कष्ट को दूर करने का भी हमें अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए हमें। और बाद में वो बातें और डिटेल में बात होंगी। समाज को, गवर्नमेंट को, हर पर्सन को उनको सपोर्ट देना ही चाहिए, क्योंकि वो उस तरह से उसके पास साधन नहीं है, पर उसके अंदर वो हुनर है, वो कला है, वो तड़प है, वो चाहत है। तो जैसे तुमने ये बात पूछी, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सोचते रहना पड़ेगा साइड बाय साइड कि ये बहुत कठिन दुर्गमो गिरी कांतार, ये तो दुर्गम है रास्ता, दुर्गम है, पर यात्री को निकलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। हर्डल रेस में तो कूद के गिर भी जाते हैं, फिर भी कूदते हैं और अचीव करते हैं, रेस में जीतते भी हैं। ऐसे थोड़ी है कि हर चीज स्मूथ होता है, तो उसका आनंद भी नहीं होता है, धूप छांव में ही मजा है। तो ये चीज है। और वो प्रैक्टिस शुरू से, मतलब एकदम ध्येय बनाना चाहिए कि जैसे हमारे लिए खाना रोज का इम्पोर्टेंट है, जैसे और रोज की दैनंदिन क्रियाएं जैसे इम्पोर्टेंट है, उसी बातों के बीच में रियाज भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, अगर हमको बनना है, अगर हमें इसको लेके आगे चलना है, तो हमें वो चीज करना ही होगा। देयर इज नो शॉर्टकट। आजकल के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दे रही हूँ, इसका मामा काका के सहारे से ज्यादा दिन तक आप लोग नहीं पहुंच पाओगे अगर आपके अंदर गुण नहीं है और वो रियाज नहीं है। 4 दिन बाद पकड़े जाओगे, 4 प्रोग्राम हो जाएगा शायद इसको उसको पकड़ के, पर जैसे ही कोई मजबूत जगह में आओगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके अंदर आपने कोशिश नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, आपने सिंसियरली उस काम के पीछे समय नहीं दिया है। तो ये सारी चीजें हमने तो, लोग इसमें पेरेंट्स को भी बहुत मदद, सपोर्ट कम से कम कुछ ना करे, कम से कम मॉरल सपोर्ट दे, पढ़ाई लिखाई को, अरे पढ़ो, अरे ये करो, सब
कितने पेरेंट हैं? अगर मेरे पास आज शायद 400 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50 पेरेंट्स शायद ऐसे होंगे जो पढ़ाई के तरह ही अच्छा, हाँ। बच्चों को रियाज कर, सुबह उठ के रियाज कर, रियाज बिना नहीं जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, कुछ रिस्ट्रिक्टनेस। तो थोड़ा सा तो करना चाहिए पेरेंट्स को भी, उनको उत्साह देने के लिए भी। एक काम वो लोग कर रहे हैं तो उसमें उनको उनको देखना भी चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी मैं तो पेरेंट्स को कहती हूँ, दादा दादी से कहिए कि वो बैठे और देखे और कहें दिखाओ क्या सीखा है तुमने। और गुरु ने अगर दो क्लास 3 क्लास में कुछ नहीं देखा तो गुरु को कहो, आपने 3 दिन से कुछ देखा ही नहीं, इसको सिखाया नहीं, करेक्ट नहीं किया। तो योर कंसर्न विल मेक द बच्चा मोर strong Involved, more involved. in the work. So that everyone plays a role. Thoda sa, it's not money, it's not anything else, but that mental थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा। हमारे पेरेंट्स ने कुछ और समझते नहीं थे। मैं तो मेडिकल फैमिली से हूँ, आपको पता है। मैं तो मेडिसिन पढ़ भी रही थी, तो मैं बच्चे कहते दीदी आप तो मेडिसिन इतना, आपका तो पूरा परिवार आपके लिए एवरीथिंग वाज ऑन अ गोल्डन प्लेट, आप वो सब छोड़ के डांसर कैसे बन गई? तो क्योंकि मुझे यहाँ जो तृप्ति, आनंद और एक आत्मविश्वास और निर्भरता जो दिख रहा था, वो वहां पे मुझे नहीं मन लग रहा था। और मैं वैसे भी थोड़ी सी इमोशनल हूँ बात बात में, तो वो डिसेक्शन करने में भी मुझे आंखों में पानी आता था, फ्रॉग डाइसेक्ट करने में भी। तो मैं सोचती थी मैं तो बहुत सारे खराब डॉक्टरों में से एक बनूंगी, तो क्या फायदा? आई डोंट नीड टू बिकम अ बैड डॉक्टर, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। So I persuaded my father, who was initially very unhappy because my whole family are doctors. Yes. So I told them, Sandeep, Papa, I will not be able to become a doctor to treat them physically, but I promise you I will try to treat them mentally and soulfully. I will try to give them the joy of art, students को भी, ऑडियंस को भी, कि मुझे देख के उनको ऐसा लगे कि ये हल्का काम है, ये सस्ता काम है, ऐसे कभी ना लगे। ऐसा लगे कि वाह, क्या महाराज जी वगैरह स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं सारे लोग ऐसे, कि क्या जैसे दिव्य पुरुष एक आ गया। तो वो दिव्य पुरुष, वो जो खुशबू फैलाता है इंसान एक स्टेज पे आके, जो वो ऑरा बिछाता है। हम लोग जब एक प्रोग्राम करते हैं, तुम्हें भी पता है संदीप, बहुत बड़े बड़े ऑडियंस में किए हो, एंड दिस आई एम टॉकिंग टू द जनरल ऑडियंस, टू द पेरेंट्स, टू दोज पीपल। खजुराहो में हम सोलो डांस कर रहे हैं, 2 आंखों के अगेंस्ट 20,000 15,000 आंखें हैं। अगर 5,000 10,000 ऑडियंस बैठी है, बड़े बड़े कुतुब फेस्टिवल, हम अकेले 2 आंखें, इतनी आंखों को कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ के रखते हैं? और लोग, हम तो कुछ नहीं दे रहे उनको, हम उनको गिफ्ट नहीं दे रहे, पैसे नहीं, वो पैसा खर्च करके आ रहे हैं, और फिर भी वो बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटा वो देखते हैं महाराज जी वगैरह को, वो भूल जाते हैं, समय भूल जाते हैं। तो यानी कि उसमें कुछ तो बात है, कुछ तो जादू है, कुछ तो नहीं। तो इसी सुर में मैं बोलूं कि हम जब कहीं भी जाते हैं ना, अगर स्टेशन पे, पहले ट्रेनों में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बगल वाला बैठा है, या प्लेन में भी बैठे हैं, ओ यू आर गोइंग टू कोलकाता, यस, ओ यू हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली देयर, नो आई एम गोइंग फॉर माय परफॉर्मेंस। यू आर एन आर्टिस्ट, आंख बड़ा हो जाता है, यू आर एन आर्टिस्ट, एकदम टोन ऐसे हो जाए, यू आर एन आर्टिस्ट, ओके, क्या करते हो? डांस। ओ वाओ, एक साधारण आदमी के दिल में भी वो ये नहीं पूछता, ओ यू आर एन इंजीनियर, वाओ, नहीं पूछता है। And sometimes not even like general, like a traveler, also the visa officers, immigration officers. अरे और क्या, वीजा ऑफिसर मुझे, ओ कैन आई सी, डू यू हैव एनीथिंग इन यूट्यूब? मैं बोली अमेरिका जा रही थी लास्ट टाइम, मैंने you open and my name in YouTube, देखते क्या, oh my God, you are a great artist। विदेश में भी हम रास्ते में, बाजार में, नॉट इंडिया, बाजार में चलते हैं
तो कुछ बात ऐसे ही कुछ होती है, ओ यू आर इंडियन, यू कम, किस लिए आए हो, ये डांस, वाओ, कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। मैं ये जनरल ऑडियंस और पेरेंट्स को कहना चाह रही हूँ कि हमारे काम का एक अलग ही एक रिस्पेक्ट हमारे अंदर है। अगर हम उस काम को उस सुंदरता से, उस स्वच्छता से, उस गहराई से अगर हम करते हैं तो हमारे पास बोलना नहीं पड़ता है। लोग प्रणाम करने ऐसे ही चाहते हैं, हम मना करते हैं उनको, भैया रहने दो, हम हमारे गुरु इस लायक है, हमें मत पैर छू। पर लोगों को अनायास ही लगता है कि वो झुकते हैं। क्यों? एक बार मुझे याद है महाराज जी को एक जने ने लिखा था, मैं डायरेक्टली कोट नहीं करूंगी उन दोनों बातों को। महाराज जी ने कहा था कि कुछ ऐसे जगहें हैं, स्पोर्ट्स की कुछ बातें हैं जो उनको इतना कुछ मिल रहा है और हम कलाकारों को कोई इतना ये अचीवमेंट दिखता नहीं है कि हमने कितने सालों कितनी तिहाइयां बनाई है हमने और कितने टुकड़े। और किशन महाराज भी बोले कितनी चीजें बना दी, इनके रन के इनके ये 100 रन बनाते हैं तो इनकी बड़ी तारीफें होती है और हमने न जाने कितने रन कितने इनिंग्स बना दिए, वो तो हम गिन के नहीं रखते हैं। तो सारी समाज और लोग भी और प्राइवेट ग्रुप्स भी और गवर्नमेंट भी उनको ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी फलाना धमाका देती है, क्यों हमारे बच्चे भी फिर हमारा काम छोड़ के यही करेंगे भैया, वो क्यों करेंगे? तो एक जने ने एनोनिमस को सुन के लेटर लिखा, बोले महाराज प्लीज आप किसी भी इन चीजों के साथ अपने आप को इक्वेट मत करिए, क्योंकि आप लोगों के काम की को जो इज्जत मिलती है, ये लोग तो एक दिन अगर वो कुछ अच्छा नहीं खेलते हैं या करते हैं तो उनके उतना थूथू और गालियां मिलती है। तो वो एक क्षण, वो एक मजे का वो है बात है। तो coming back to it, everything is very important if you are doing it in a dedicated way with a commitment, whether it's sports or music or dance or पढ़ाई or whatever। तो जितना उसमें ध्यान देना है उतना ही हमारा काम भी मांगता है कि आप उसमें समय भी दीजिए और डेडिकेशन भी दीजिए, तब तो no one can stop you। Yes, yes, yes. Through our life, we are like experiencing that. Like, yes, it is. Maybe it will take a longer time. Like, not like other professions. Like, just after 5 years, you will get the title and like the job, and that is different. But in our Yes, way, like it is coming. It should be. So yes, then, एक बात मैं आपसे क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि अगर हम बातचीत ऐसे करते जाएंगे तो पूरा 2-3 दिन लग जाएगा और बातें चलता ही रह जाएगा और वो खत्म नहीं होगा। पर फिर भी जब हम टाइम एक एक टॉपिक को लेके बात करते हैं तो अभी जैसे मैं सबसे बात करते हुए मुझे जो लगा कि ये अभी जो आप भी बोले कि ये सबका सेम ही है कि एक तो रियाज, शिक्षा, डेडिकेशन, धैर्य, ये सब जरूरी है। उसके साथ साथ मैं ये मेरा आपसे ये जानना है कि एक डांसर जब वो मतलब प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सीखने के तक हुआ, अगर आप एस्टैब्लिश होना चाहते हैं तो आपको तो इधर यू विल बी अ परफॉर्मर और लाइक performer as a group or as a soloist or as a teacher or as a choreographer. So these are the things that comes later on to become an established. So if you just discuss about that, like how one can plan like his or her journey for establishment. in the beginning one has to learn everything and try and see what is their forte, what is their strong point। ये खुद को भी डिस्कवर करना चाहिए। देखा सीखा परख्या, परख्या is that part where you churn within yourself। अपने अंदर से आपको चर्न करना है कि आपको क्या सबसे अच्छा मजा आ रहा है, क्या किस काम में। जैसे कुछ लोग होते हैं वो इतने अच्छा, मुझे याद है कि संजू नानी यानी संयुक्ता पानीग्राही जी, वो तो डांसर पार एक्सलेंस, उनको तो मतलब शायद दुनिया में सबसे ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में परफॉर्म किया होगा। जब मैं बोलती थी संजू नानी आप सिखाना शुरू कीजिए तो संजू नानी बोलती थी ना ना শেখাতে চাই না আমি, দূর দূর শেখাবো না, কারণ
no one is as dedicated as I have been. तो वो hobnob करके आधा अधूरा. So I don't enjoy teaching. So she was clear in her imagination. No. I don't want to do teaching. I want to till my last breath. I want to dance. Perform, yes, and that too solo performance. ये मुझे करना है. कोरियोग्राफी वगैरह भी उनको कुछ ज़्यादा मजा नहीं आता था. हम लोगों के साथ मैंने I've been lucky to have performed with Sanju Nani in duet also, but she was not into too much of composition choreography. वो खुद she was born to dance, जिसको कहते हैं कि एकदम angel थी वो. So you have to see what your heart says. What are you? Some people have a very good knack for teaching. They enjoy as much. Like Maharaj Ji, of course, he has a wonderful balance. He's everything. All yeah, I think Maharaj, we can leave Maharaj Ji. all these ways he has excelled. But as of now, in the last 20 years, I know, he has enjoyed teaching so much. उनको प्रोग्राम आने से भी वो कहते हैं अरे छोड़ो यार प्रोग्राम. लोग कहते हैं, मैं अभी शाम को मैं ऐसी जगह बैठी हूँ मंदिर में, झूठ तो नहीं बोलूँगी, उनको अगर इतना पैसा भी कोई दे और कहे कि 5 लाख 10-7 लाख आपको देंगे, आप परफॉर्म करिए, और उनको अगर उस टाइम कोई वर्कशॉप 20-25-30 हजार में मिल रहा है 3 दिन का, नहीं यार वर्कशॉप करना है मुझे, महाराज एक दिन आ जाइए 5 लाख रुपए आपको प्रोग्राम दे दो. ये बच्चों को सिखाने में आनंद आता है. ये सच बात कह रही हूँ मैं, अत्योक्ति नहीं है, ये सच है. वो आज से 20-25 साल पहले तक थोड़ा नाच में परफॉर्मेंसेस में मजा लेते थे, 25-30 साल. But in the last 30 years, he has focused his whole attention in preparing. Compose करते हैं, but totally सिखाना. तो ये उनके दिल की चाहत है. तो हमारे में से भी हम लोग भी शुरू में, और आज वही हम भी देखते हैं. मुझे भी अब टीचिंग में जो मजा आता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं नाच नहीं पाती हूँ, पर ट्रूली मुझे अगर कोई कहता है कि आपको बुला रहे हैं वर्कशॉप करने की, मुझे ज्यादा खुशी होती है बजाय इसके कि हाँ एक प्रोग्राम कर लिया, चलो कर तो लेंगे, पर सिखाएंगे तो I think that's a joy of its own kind, to prepare another बच्चा to be able to give. It's like nurturing a child. एक बच्चे को पैदा करके जैसे उसको बढ़ाने में खुशी है, अपने बच्चे को जैसे पालने में खुशी है, वैसे एक स्टूडेंट को बढ़ते देखने में जो आनंद है, वो तो अपने नाच में भी नहीं है, वो नहीं है. तो ये तो इंसान को अपने आप से देखना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है. जबरदस्ती तो कोई काम सफल नहीं होता है. तो और किसी को कुछ लोग हैं जो मेहनत कम कर, उतना मेहनत नहीं करना चाहते. हमारे स्टूडेंट्स में ऐसे भी हैं और उनको बहुत मजा आता है. दीदी हमको कॉम्पोजिशन कराइए ना, दीदी हमको कोरियोग्राफी में कराइए ना, हमको थोड़ा सा उसमें भी दे दीजिए. बिकॉज they are आलसी, they are lazy, they don't want to do as much work. But not that they don't love dance, they love dance, they want to dance, but they don't want to put in so much मेहनत. तो हमें दिखता है कि जब वो हम कॉम्पोजिशन करते हैं तो उनको जरूर लेते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सिंसियर इन द कॉम्पोजिशन, कि एकदम अच्छे से करेंगे, कहीं गलती नहीं करेंगे, याद भी करेंगे. पर वो जो इंडिविजुअल सोलो बनने का जो मेहनत है वो उनसे नहीं होगा, वो उनसे नहीं होगा. अभी मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे 3-4 लोग हैं, तुम भी जानते हो कुछ एक को, जो इधर नाच रहे, इसके साथ नाच रहे, इस ग्रुप के साथ, उस ग्रुप के साथ, उसमें उनको पैसा भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, और घूमने भी. मेरे ख्याल से एज अ टीचर, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो मतलब अगर किसी में पोटेंशियल है तब जाके अगर वो ऐसे करे तो दुख पहुंचता है. पर अगर लगता है कि चलो इसका ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही ठीक है, सोलो बन नहीं पाएंगे, उसके लिए तो एकदम 100% सही है. पर जिनका जिनका सोलो क्वालिटी है, मतलब जिनका जो सोलोइस्ट बन सकता है, क्योंकि वो तो कोई बनता है, वो तो कोई बनता है,
वो अगर जब ऐसे ऐसे करे तो बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करो तो आज नहीं तो काल होगा, आज नहीं तो काल होगा। सबर, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। वो जो लोग नहीं हाँ देते हैं ना, वो बहुत धोखा वो खाते हाँ, हैं, उनके दे लिए, लूज। उनके लिए खराब लगता है, क्योंकि उनको वो जो जगह पहुंच सकते हैं ना फ्यूचर। भगवान सबको नहीं देता है, और जिसको देता है वो हाँ अगर उसका कदर नहीं हाँ, जाने तो बहुत दुख की बात है, तो मतलब बहुत दुख। वही अपने आप को समझना सबसे जरूरी बात है कि मेरा क्या फोटे है और मेरा क्या एडवांटेज है। अच्छा दीदी, अ, अभी मैं मतलब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि एक तो ऐसे ही तो एस्टेब्लिशमेंट आने के लिए ये सब सुन लिया हम लोग, अभी आ जाता है कि सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेन करने के लिए मतलब आपको क्या लगता है कि जो एक आर्टिस्ट्री और फाइनेंस इन दोनों में बैलेंस करना तो मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू शुरू में परफॉर्मेंस के हिसाब से सबको मतलब मार्केट में आना है, लोगों तक पहुंचना है, और उस टाइम में भी अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर प्रेजेंटेशन अच्छा होने के लिए उनके पास मतलब फंडिंग चाहिए। तो अब जी वो फंडिंग वो कैसे मैनेज करे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, और बाद में जब वो आगे चलता जाता है तो उनके साथ उनके लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, ऑडियंस का या बुजुर्गों का, सबका। चाहे वो परफेक्शन हो, डांस के परफेक्शन हो, या तो प्रेजेंटेशन कॉस्ट्यूम हो या लाइट हो, सब मतलब पूरा टोटालिटी। तो मतलब इसमें मुझे जो लगता है कि एकदम शुरू से जब तक आप पूरा फील्ड में है, पूरा ही एक बैलेंसिंग है, मतलब आप कैसे इन दोनों में बैलेंस करते चलेंगे, तो ये इसके। तो शुरू से, हाँ। शुरू से हर को सोच के चलना हम्म, पड़ेगा, चलना चाहिए हम्म, कि मैं, मेरा सामर्थ्य क्या है, और मैं इसमें से सपोज मेरे पास एक मूलधन है, उसी से मुझे ए बी सी हर तरह की, मेरी फैमिली को भी कुछ देना है, खुद को भी मेंटेन करना है ढंग से, महंगा कपड़ा नहीं पहनने पर ढंग के कपड़े पहनने हैं, और रियाज का गुरु के यहाँ स्कूल का फीस, या रियाज के लिए तबला, जो भी सब, तो उसको तो बहुत थोड़ा सा सोच के बैलेंस करके करना चाहिए। और ये है कि एकदम से वो जंप करके अगर दूसरे को देख के अगर वो कूदने की कोशिश करेगा ना, कि अच्छा उसको तो मिल गया, अरे भाई उसके बैकग्राउंड को का अलग होगा, शायद उसको दूसरी बात होगी, जो भी है, आप अपना प्लानिंग से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए, ताकि आप एक छलांग ले और गिरे नहीं, आप चढ़ते ही चले जाए, और धीरे धीरे भी सही, बट आप वही टॉर्टोइस और हाँ रैबिट का, रैबिट स्टोरी, हाँ story। कि वो आप रुके नहीं, आप धीरे 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 करके टारगेट अपना सेट करिए, कि आज आपने कॉस्ट्यूम सूती का सिंपल सा, एक थोड़ी इंटेलिजेंटली यूज करिए, कलर अच्छा हो, स्टेज पे अच्छा दिखे, कोई जरूरी नहीं आप रॉ सिल्क और ये सब का पहनो, और ऑडियंस भी हम्म, हम्म, आनंद लेती है, या आप बहुत ज्यादा कुछ लाइटमैन बुला के और इतना फैंसीफुल, क्या जरूरत है, आपके काम की हुनर, थोड़ा सा वो सब, वो आपके पास रिकॉर्डिंग करने का भी अगर इस तरह से सामर्थ्य जब तक नहीं है, तो आप थोड़े से म्यूजिशियन, आपके अंदर की अगर स्ट्रेंथ है ना संदीप भाई, यही चीज लोग अपने को तो पहले मजबूत बना ले, वही, किसी की जरूरत नहीं। बिल्कुल एक तबला एक लहरा बजा के भी सक्सेसफुल प्रोग्राम होता है, बिल्कुल और बिल्कुल। पूरा ऑर्केस्ट्रा में भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं कभी कभी, दुनिया भर के बैठे हुए हैं, फिर भी खराब प्रोग्राम हो जाता है। तो ये तो आपकी अपनी क्वालिटी पे विश्वास भी होना चाहिए। आजकल के बच्चे तो शुरू से ही मतलब कॉस्ट्यूम और लाइटिंग और सेटिंग और फलाना, वो ज्यादा जरूरी है, अंदर का माल क्या है पता नहीं, पैकेजिंग, पैकेजिंग। सब लोग पैकेजिंग में लग गए हैं, कि वो अंदर माल हो ना हो, तो वो वही बात कि एक दो बार के बाद, तो वो तो पैकेजिंग जब देख लिया लोगों ने, तो उसके बाद वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करता है, उसको खुद को भी रात को नींद वैसे नहीं आती होगी जो मुझे और तुम्हें आती है, हाँ कि बिल्कुल। आह आज एक प्रोग्राम अच्छा अच्छा हुआ, किया, अच्छा हुआ। अच्छा,
मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो बिल्कुल मुझे याद है कि कोई नहीं पहुंच पाया, और बाल मुरली जी गुरु जी वहां बैठे हैं धारवाड़ में, और एक पता नहीं कहाँ से मेरे म्यूजिशियन का ट्रेन लेट हो गया, 8 घंटा ना 12 घंटा, तो शो में नहीं पहुंच पाए। सिर्फ वोकलिस्ट थे हरि भाई, और कोई नहीं था, तबले वाला भी वहां पे कोई रेडियो का नहीं मिल पाया, ना दिन दिन ना ना ऐसे बजाने वाला। तो पर ईश्वर की दया से इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उसके कॉन्ट्रास्ट में एक बार भावनगर में पूरी टीम लेके गई थी, इतना खराब प्रोग्राम हुआ। वहाँ मिशन के महंत लोग थे, और वो लोग तो बेचारे मुझे तारीफ कर रहे थे, और मुझे खुद को इतना शर्म आ रहा था। संदीप, अपने को पता लग जाता है, कोई दुनिया कहने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान मैं यहाँ से निकल जाऊं, कितना खराब मेरा प्रोग्राम हुआ। तो it is not what the money you have, what you can spend on anything, lighting, ये वो, नहीं नहीं नहीं, you have to think that you need a good balance चाहिए तुमको। उतना ही खाना, आपको रोज पिज्जा और बर्गर से आप जीवन तो नहीं चलाते हैं, दाल रोटी से भी आप आराम से खूब खा पी के अच्छे रह सकते। बिल्कुल दीदी, आपकी ये बातों से मुझे मतलब ऐसे मतलब सोच आया कि मेरे ख्याल से ना ये जो आप अभी उदाहरण दिए ना कि एक मतलब बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छा प्रोग्राम हो गए और बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में भी अच्छा प्रोग्राम नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से ना मैं जो सोचता हूँ तो इसी के कारण हम मतलब जो डिविनिटी की आप बात कर रहे थे कि यही जगह आके हमारा विश्वास वहां अटक जाता है कि वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम जितना भी सब कुछ करें तो वो मतलब गुरु की कृपा या भगवान की मतलब जो भी है वो एक कुछ मतलब कुछ है वहाँ है वहाँ इसीलिए मतलब ये तो लगता है कि मुझे अगर कोई प्रोग्राम खराब होगा तो मैं फॉर एग्जांपल मैं सोचता नहीं मेरे साथ तबला अच्छा नहीं था या लाइट अच्छा नहीं था या साउंड, पर वो नहीं है, वो उस दिन होने का था। हाँ वो सब बहाना। हाँ। तो वही तो ये इसी में और मेरे मुंह इतना अच्छा लग रहा है कि कभी कभी हम ग्रुप में या सब जगह ना लोग ऐसे कहते हैं दोस्तों में कि सब लोग अपना सारे कुछ जो अच्छे है वही सब बोलते हैं, पर मेरे ख्याल से दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी कि लाइक एन आर्टिस्ट लाइक एट योर स्टेचर you also can like confess like yes that program was not so much good. I think बहुत खराब। this is the honesty और यही सिर्फ इतना ही नहीं संदीप, आज मैं इतनी दुनिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने ये भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे अपने खुद नाच के अंदर भी कुछ एक चीजों पे मुझे ज्यादा भरोसा है, ज्यादा विश्वास है जो मेरे फोटे हैं, और कुछ एक चीजों पे मुझे उतना भरोसा नहीं है, जो मैं जानती हूँ कि मैं कर तो सब भी लूंगी और ठीक से ही करूंगी, ऐसा नहीं है, ईश्वर की दया से इतने सालों का एक्सपीरियंस है। बट फिर भी मेरे अपने ही नाच में मुझे पता है कि मेरी बेस्ट चीजें कौन सी है और मेरी कमजोरियां क्या है। अगर ये मैं नहीं पहचान पाई तो मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ। इफ आई डोंट रिकॉग्नाइज माई शॉर्टकमिंग्स, आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर। आई हैव रिकॉग्नाइज कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो मैं करूंगी उतना ही करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको लेके मैं एकदम और करेंगे उसमें मुझे कोई मेरे बगल में नहीं आ सकता है, वो मेरी जीत है और कोई मुझे हरा नहीं सकता उसमें। और इसीलिए मेरे ख्याल से टाइम मतलब वो पेशेंस जरूरी है, क्योंकि ये आपका जो विचार मतलब कौन सी आपका ज्यादा है कौन सी कम है ये जानने के लिए आप एक बार दो बार करने से नहीं होगा, बार बार ये करना पड़ेगा। स्टेज में आपको कितने बार आप करने से आपको लगा कि चलो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सिर्फ ये मेरा बिलीव नहीं है, ऑडियंस भी इसको अप्रूव कर रहे हैं और यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए तो इसीलिए मतलब टाइम हमारे कथक के फील्ड में संदीप, ये मैं बहुतों को कहती हूँ और आज फिर मैं कह रही हूँ, सबके बस की बात नहीं है चक्कर बहुत अच्छे से करना, पर हर कथक डांसर सोचता है कि मैं 21 चक्कर 51 चक्कर करूं, चाहे गिरते पड़ते हाँफते टेढ़े मेढ़े होके भी करूं, पर क्यों करूं? मेरे गुरु तो मैंने अपने
मैं लकीली मेरा महाराज जी, पिछले साल, संदीप, मेरा पिछले साल 50वां साल था मेरे गुरु के साथ, 50th ईयर विद माय गुरु। तो इट्स एन ऑनर, इट्स अ ब्लेसिंग कि मैं इतने साल, पर इतने 50 साल में मैंने कभी महाराज जी को नहीं देखा कि वो यंग एज में भी, आई हैव सीन हिम ग्रो एज आई हैव ग्रोन। 11 चक्कर भी कभी कभी किसी एक टुकड़ा है हाँ हमें सिखाया था। उसके बाद 30 साल से तो मैंने उनको 3 तीन चक्कर से तीन ज्यादा, हाँ था, वही मैं 3-4 कोई चक्कर नहीं। कमी तो नहीं हुई उनकी, हाँ, पर लोग, हाँ, मैं भी एक समय पे आपका तो जोश चक्कर नहीं, आपका चक्कर तो अभी भी है, अभी भी सब में है। मैं कहती हूँ, लोग लोग ऐसे ऐसे फजूल में, पर हम देखते हैं दुर्गा, हमारी दुर्गा या क्या खूबसूरती का चक्कर लेती है, तो लोग जबरदस्ती नकल अगर करे कि नहीं जी वो तो कर रही थी हम भी करें, तो हमारे कथक में कुछ चीजों का बहुत मूर्खता है। मैं उपज कर रहे हूँ बोल के रटा पिटा चीजें दिखा रहे हैं उपज में, तो कोई जरूरी नहीं है का आपको, आपका अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया आपको कि उपज आप बोल के करिए, अरे रटी चीज को कर रहे हो, ये तो सब जना समझ रहा है, लोग ऑडियंस हंस रहा है बैठ के, जानकार लोग हंस रहे हैं, अरे उपज हो रहा है, ये तो बेवकूफ बना रहे हो। तो our children, our students, our artists should understand their strength, यस understand their weakness, तो यस। तब जाके वो अच्छा सफल हो सकता है। और दीदी जैसे कि ये कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है मतलब सबके अंदर, पर कि अगर हमारा हमारे पीछे बैकग्राउंड है या सपोर्ट है तब जाके हम बन पाएंगे, पर मेरे जो विश्वास है और मैंने जो मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि हाँ हो सकता है बैकग्राउंड होने से उसको थोड़ा जल्दी मिल जाए स्टेज वगैरह। थोड़ा हाँ, पर वो और पर मैं दीदी आपसे ये मैं शेयर करना चाहेंगे कि मैं से आज ही मैं किसी से बोल रहे थे कि अगर आप जितना भी लेट होंगे मेरे ख्याल से उतना अच्छा है, क्योंकि आपका जो ड्रॉबैक्स है आप उसके ऊपर और काम कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल जब आप देखेंगे कि दूसरे लोग, आप फॉर एग्जांपल आपसे कम कैलिबर के लोग आगे बढ़ गए, तो आपको लगेगा ये बढ़ गए तो मैं क्यों नहीं, तो मुझे और अच्छा करना पड़ेगा। तो ये एक वो एक जिद आ जाता है, और उससे ये क्या होता है कि अपना जो उनका जो एक्चुअल कला है वो बढ़ जाता है, हुनर बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। हमारे कथक में तो संदीप भाई 28-30 की उम्र तक तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि एक 16, अच्छा 30 साल के बाद हमारी जिंदगी शुरू होती है, 30, 32, 35 के बाद हमारा, जबकि दूसरे डांस फॉर्म्स का तब थोड़ा कम होने लगता है 35-40 से, क्योंकि उनका बॉडी और खूबसूरती उनका बहुत स्ट्रेंथ, वो हमारा तो 35-40 के बाद हम लोग समझने लगते हैं कि स्टेज को कैसे पकड़ना है, स्टेज पे कैसे हैंडल करना है। तो इसीलिए हम लोग तो जब तक 30 साल तक अपना कोशिशों में ना लगे, स्ट्रगल, मैच्योरिटी अंदर से नहीं आती है, और वो हम हर परिस्थिति को टैकल नहीं कर पाते हैं, फिर बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। वो फिर रट्टा पिटाई होता है। हाँ, वही मैं भी सोचता हूँ और मैं बोलता भी हूँ कि देखो एक, घबराना नहीं चाहिए, हाँ किसी भी चीज के लिए अगर आपको जिद है तो वो मिलेगा, मिलेगा हाँ, हर हालत, वो नहीं मैंने, वो कोई आपको रोक नहीं सकता है नहीं, उसके मैं लिए। अपने जीवन से और आप मतलब आपके मतलब ब्लेसिंग्स महाराज जी के आपके मैंने। जीवन तो बिल्कुल उदाहरण है, और मेरे जीवन में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ना, कथक क्या है, का क्या, क्लासिकल डांस क्या है, ये भी नहीं, मैं दिल्ली में बड़ी बली हूँ, मेरे फादर डॉक्टर थे मिलिट्री में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दिल्ली में आ गए, दिल्ली में तो हमारा कोई रिलेटिव नहीं, बंगाल का हमें वो मिला नहीं, मैं 6 महीने की थी तब से दिल्ली में, तो आई गॉट, एंड दिल्ली वॉज इन दोज डेज इन, व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग 59 में, तो तब दिल्ली में आर्ट एंड कल्चर का इतना कुछ नहीं था, तो इसलिए कोई जानता ही नहीं था, तो बैकिंग वैकिंग को छोड़ो, कोई, मेरे स्टूडेंट मेरे साथ के कॉलेज वाले इतना बदतमीज थे, बदमाश थे लड़के, वो मैं जब मेडिकल छोड़ दी थी मैं सेकेंड ईयर में, फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स, क्या रोज थे थू करने जाती, मैं को मारूंगी एक झापड़, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, तो दिस वाज द एटमॉस्फेयर, दे डिडंट नो,
They didn't know what Kathak or Bharatanatyam or anything was. No classical. पर अब Delhi has become the hub. My God, हर रोज इतना हो रहा है कि पूछो मत. तो हर चीज टर्न ऑफ द व्हील होता है. और पेशेंस, सब्र. दीदी लास्ट में मैं मतलब सबके लिए आपका कुछ मतलब सुलह मतलब यंग जो अपकमिंग डांसर्स, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबके लिए अगर, क्योंकि इतने ये जो हम सीरीज शुरू किए थे, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे शुरू मतलब आपके साथ डिस्कस करते हुए ये मैंने शुरू किए थे, और इतने सारे मतलब वो महाराज जी के पहले जो गांडाबंद सागरेत प्रताप जी, उनसे हम लोग ये शुरू किए, और फिर आके मेरे पास भी जो लोग शिष्य है उनको भी मैंने लाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक जर्नी जब होता है तो वो फैमिली का जो एक बनता है, तो वो तो जो मतलब ग्रैंडफादर, उसके भी पिता, उससे भी ग्रेट ग्रैंडफादर से एकदम ग्रैंड चाइल्ड लिनिएज, तो ऐसे होने, तो वही मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ कि मैं सबको तक नहीं जा पहुँच नहीं पाए, पर उसके लिए मैं क्या करें, हमको भी तो टाइम पे पकड़ के चलना पड़ता है। और तो बस सबके लिए आपका दीदी कुछ सजेशन, क्योंकि आज आपके ये एपिसोड से हम ये सीरीज खत्म करेंगे, और फिर बहुत जल्दी एक खास टाइम पे हम लोग लेके आएंगे ऐसे ही फीमेल सीरीज, उसके लिए भी काम शुरू हो गए। तो दीदी सबके लिए आप अगर, बहुत अच्छी बात है. कोविड ने सबकी जिंदगियों को बहुत बिखेर दिया है, बहुत कष्ट में है, पर कम से कम हम कलाकार लोगों को जोड़ भी दिया है. हम लोग किसी ना किसी तरह से जुड़ रहे हैं. हमें इतना ही मैसेज देना है, चाहे वो सीनियर आर्टिस्ट हो या जूनियर. कला इतना पवित्र में है, पवित्र चीज है, उसमें हम नहीं होना चाहिए. उसमें जेलसी, द्वेष और ये सब गुस्सा और एक दूसरे को काटना, एक दूसरे, ये अगर आता है तो वो शुद्ध कला नहीं है. बड़ों को चाहिए छोटों को मदद करे, तो छोटे कलाकारों को थोड़ा समझाए बुझाए, छोटों को चाहिए बड़े से मदद ले. ये एक इतना पवित्र आर्ट है कि इसमें जैसे एक मंदिर में जाते हैं और सब एक हो जाते हैं, तो वो चीज हमारे अभी भी ना, खास करके डांसर्स में अभी भी वो समन्वयता और वो एकाग्रपना और वो मिलनसार जो तबीयत है वो अभी भी और होना चाहिए. तो सिर्फ ये है कि इस कला में रह के खूब, इसमें तो मैं नहीं हूँ तुम होने हो, नाद ब्रह्म की पूजा आप करते हैं, और जिसमें थे ता गिलान तड़ाम तड़ाम, इसका कोई अर्थ नहीं है, भौतिक शब्द नहीं है, तो इट डजंट से गिव मी और टेक. सो उस पवित्र बोलों के बीच में दुनिया में रह के हम लोगों को अपने आप को कम से कम पवित्र हृदय बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और अपनी कमिटमेंट के साथ हर स्टूडेंट को मैं ये कहूँगी कि आस्था रखे अपने काम पे, अपने इरादों पे, और एक लक्ष्य बनाए. हर जना बिरजू महाराज नहीं बन सकते, हर जना पंडित रविशंकर जी नहीं बन सकते, और महाराज जी स्वयं कहते हैं, पर महाराज जी कहते हैं पर इस टेरिटरी को संभालने के लिए एक राजा तो नहीं चाहिए, अनेकों सब लोग चाहिए, तब जाके वो दुनिया सुंदर और समृद्ध रहेगी. तो हर जने की उसने जगह बना रखी है, ईश्वर ने एक जगह दे रखी, उस जगह को पहचानो, उस जगह के तरफ टारगेट बनाओ, काम करते जाओ शुद्ध मन से और धैर्य से, डेडिकेशन से और पेशेंस से. कभी घबराओ मत. लोग कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है, अरे काय का डिप्रेशन, हमें तो शायद अभी आज मैं अगर गिनूं जितना मेरा करियर का लाइफ स्पैन है, उस हिसाब से औरों के मुकाबले मुझसे कितने जूनियर, 30 साल जूनियर लोगों के मुकाबले भी मैं कम नाचती हूँ, कम परफॉर्म करती हूँ, पर मुझे तो कोई इस बात का दुख भी नहीं है, कभी भी नहीं हुआ कि आप लोगों को जो जार्नी आज अमेरिका काम प्यार किया, काम से आनंद लिया. तो यही चीज सबसे पहले चाहिए मेरे ख्याल से लोगों को. इसमें कमर्शियल मोटिव नहीं बना है, वो तो आएगा ही, वो मिलेगा ही, और दाल रोटी आपकी मिलेगी,
पर आप ये मत सोचिए कि इससे मुझे एफ्लुएंसी की आकांक्षा रहेगी, तब तो सरस्वती और लक्ष्मी जरा दूर दूर रहती है। ये इसकी अगर आप साधक हो तो दूसरा थोड़ा सा कम ही मिलेगा आपको, कोई बात नहीं। बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं जिनको थोड़ा दोनों थोड़ा एक साथ। दोनों हाँ। दोनों मिलता है, दैट इज वेरी, मिल भी जाएगा। पर क्या कितना चाहिए, जितना हाँ। चाहिए उतना जरूर मिलेगा। बहुत दीदी प्रणाम। और मेरे ख्याल से सबको बहुत ही आनंद मिला है ये पूरा सीरीज देखते हुए और दीदी के साथ लास्ट फिनाले में बातचीत करते हुए। जो दीदी थैंक यू, मैं तो फिर भी दोबारा नहीं भी मैं थैंक यू बोलना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से एकदम शुरुआत। तुम भी एक कला की सेवा ही कर रहे हो, हाँ, ये वही मैं कला कोशिश ही वही सेवा है। वही कोशिश है, ताकि वो वही मैं दीदी से भी मतलब ये और एक बार मैं बोल लेना चाहता हूँ कि सच में मेरा पहले से ये करने का जो मतलब सोच था, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम सबके लिए और कला के लिए। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर बनाने में भी मतलब खर्चा पड़ता है और पूजा देने में भी सब कुछ लगता है, पर इसके सबके अलावा जो भक्ति है वो एक्चुअल मतलब वही मेन है। तो मेरे ख्याल से कला की जो साधना है वही मेन है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि यही मतलब पूजा हो रहा है, नहीं तो वो तो नहीं होगा। हाँ, ये आडंबर जो उपाचार जो है ये इस सब के लिए पैसा लगता है, पर पूजा के लिए पैसा नहीं लगता है, उसके लिए मन की। लोगों के पास पैसा है ना संदीप जी, उनके पास भी लोग मंडराते हैं, पर स्वार्थ से मंडराते हैं। हाँ। हम लोगों के पास कला है, हाँ। उनके पास जो लोग आते हैं हाँ। वो भक्ति में और समर्पण और वो उस खुशी के लिए आते हाँ। हैं, हाँ। क्योंकि हम कुछ दे तो नहीं जय पाते जय जय। सिवाय उस स्वच्छ खुशी के। बिल्कुल। तो हमारी ये सोच। हमारी दुनिया अलग है, हाँ, तो ये वो सोच आनंद। कि अगर चले तो बस। तो प्रणाम दीदी, प्रणाम। थैंक यू, नमस्ते। Namaskar. It was really a pleasure for me to conduct this aspiration. Yes, I'm really grateful to all the gurus and my dear colleagues and also the young dancers who were there as a guest for aspiration to discuss about our topic like the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And yes, I tried my level best to reach all the age group like the dancers starting from like the gurus till the younger dancers. Yes, I maybe could able to reach to each and everyone, but I hope through this age groups discussions we get to know their journey and their views regarding the establishment and sustainability. And yes, of course, it's my duty to say thank you to each and everyone without whom it wouldn't be possible. Anuj Vashak, he did the poster, the first poster of Aspiration. He is a student of mine. And then Dibojyoti Giri, he did all the posters of these all the episodes, and he has a very good relationship between us. He is a son-in-law of Nadam. He is the better half of Mondira Paul, our senior dancers, teachers, and she is a national scholar as well. And then we come to Oishika Ghosh. Yes, she managed all the pictures collecting from the FB, and she supplied to Dibbo, and also she managed all the online orders. And she is in Jadavpur University. She is pursuing her bachelor's in sociology, and she is a national scholar as well. She got CCST scholarships, and she is learning from me since her childhood. And then we coming to Shairi Bhuya. Yes, she did a wonderful job. She did all the editings of this aspiration series, and she is a biotech engineer, and she completed here in India
and now she is going to Germany. When the lockdown session will finish, she will be going to Germany for her further study, and I'm really proud of her. And how she managed her entrance exam for abroad, for Germany and other countries, and still she managed her time to do all the editing. So thank you each and everyone. She is also learning from very childhood under me. Yes, Tandani Bose, Mundira Paul, Pankaj Bhattacharya, Shourabh Pal and Shubhadeep Shah, they are there to manage all the regular classes of Shona Kunadam, so that we can concentrate for this aspiration. So thank you each and everyone. And finally, without whom I couldn't do anything because of my family. And yes, we all know we are stuck at home like the last 5 months, mostly 5 months, and during these interviews and all, my wife Rupasri and my son Shubham, they helped me a lot, because I am not a good person in terms of technology. So most of the time when I used to stuck during the connectivity and all, the Shubham helped me, and also he shared the devices, like who will use computer, like a laptop, and who will use tab, and all this happened because he was having his school online, and sometime it was the time when we used to clash each other regarding the devices. So anyway, it's a part of life, and I am really grateful to each and everyone for being with us, and hope you enjoyed this aspiration series. And we are coming again this with the same topic, but from the female point of view in very near future. So thank you.